In this video we will study about eigen values and eigen functions. Now जो भी आप function select कर रहे हो wave function उसको following rules follow करने पड़ेंगे to become a eigen function. So what are the conditions for a function to be eigen function? Number one, value की होनी चाहिए single. Number two, it must be continuous. That means it should not change suddenly as the variables change. And third, it must be zero at infinity. जो भी आपका function ये तीनों rules follow करेगा, you will call that function as eigen function. Otherwise, that function is not eigen function. Now talking about the psi, जो हमने पीछे Schrödinger wave equation में भी use किया है, psi basically represents amplitude of the wave. कितनी height है आपकी wave की, उसका वैसे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इसी साई को जब आप स्केयर कर दोगे तो इट गिव्स यू द आइडिया रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए स्मॉल वॉल्यूम इन स्पेस. तो साई का ऐसा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साई को जब आप स्केयर में कर दोगे, साई का स्केयर करते हो तो आपको वो बताता है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है. तो साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साई स्केयर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है. इट टेल्स यू अबाउट probability of finding the electron where the probability of finding the electron is maximum. Next आपके पास आता है normalized wave function. किस wave function को आप कहोगे कि ये normalized है? Wave function. So let's suppose psi square dx or psi star dx, it represents the probability of finding the particle at any point x. So अगर आपको एक स्मॉल पॉइंट x पे प्रोबेबिलिटी पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की या पार्टिकल के फाइंड आउट करने की इतनी है, तो x को अगर हमने पूरे वास्ट स्पेस में कन्वर्ट करना है, सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द एंटायर रेंज ऑफ लेंथ दैट मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी. तो आपको क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है एंड वैल्यू किसके इक्वल पुट करनी है, 1 के. सो साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1, और यू कैन राइट साई स्क्वायर नहीं लिखना तो साई और साई स्टार dx इक्वल्स टू 1 लिख लो. सो यू हैव टू इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट्स 0 to l होल स्पेस. तो साई स्टार dx इज इक्वल टू 1 और साई स्क्वायर d tau equals to 1. ये dx तो है when we are talking about only one axis, and d tau is when we are covering the 3 coordinates x axis, y axis and z axis. So कोई भी wave function जो इस equation को या इस equation को follow करेगा या satisfy करेगा, we will call that wave function as normalized wave function. Otherwise that function is not normalized. So what is the criteria for the normalized wave function? That wave function square psi square d tau. D tau means 3 axes dx, dy and dz integrated over the whole space should be equal to 1. Next is condition for orthogonality. Now again we have two wave functions. When we will say that both these two functions are orthogonal, so when product of psi I and psi j star d tau, again 3 axis equals to 0, or integration of psi I star psi j integrated over 3 axis d tau, it is equal to 0. So the two functions, wave functions which follow this equation, we call them as orthogonal. And third type of wave function is orthonormal wave function. So again we have two wave functions, psi I star product of psi I star and psi j integrated over the 3 axis if it is equal to 1, or integration of product of psi j star and psi j on the 3 axis if it is equal to 0 when I is not equal to j. So the wave function which obey above two equations, we call them as orthonormal. So there are 3 kinds of wave functions. One is normalized wave function, second one is orthogonal wave function, and third one is orthonormal wave function. So next we will study about is operators. What are operators? So operators are any mathematical procedure which is applied on a function to get another function is known as operators. So basically जो operators है ये एक mathematical procedure है जो किसी भी function के ऊपर लगाया जाता है so that we are able to convert that function into some another function. Let's suppose take an example of square root. Square root क्या है? It is an operator. अब square root के अंदर जो भी value लिखेंगे that is its function. अब लेट्स सपोज मेरे पास स्क्वायर रूट है, मैंने स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख ली 4. अब मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 4 का, तो ये स्क्वायर रूट क्या हो गया, ऑपरेटर. ये किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है, 4 के ऊपर, तो 4 क्या हो गया, ऑपरेशन.
अब जब इसका आंसर आएगा इट विल बी इक्वल टू 2। सो इस फंक्शन को 4 को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया 2 में, किसने? ऑपरेटर ने। यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? स्क्वायर रूट। सिमिलरली बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, इट इज ऑल्सो ऑपरेटर, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन किसी की करोगे सो इट विल कन्वर्ट दैट फंक्शन इनटू सम अनदर फंक्शन। सो बेसिकली ऑपरेटर किसी भी फंक्शन पे एक्ट करता है और उस फंक्शन को कन्वर्ट कर देता है इनटू अनदर फंक्शन। सो जिस फंक्शन पे वो एक्ट कर रहा है उसको फंक्शन कहने के बजाय ऑपरेंड भी कहते हैं हम। सो ऑपरेटर ऑपरेंड पे लग के उसको कन्वर्ट करता है इनटू सम अनदर फंक्शन। लेट्स सपोज यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है? ए। वो किस फंक्शन पे लगा है? एफ पे, और उसने एफ को कन्वर्ट कर दिया इनटू अनदर फंक्शन दैट इज जी फंक्शन। सो दिस इज द ऑपरेटर। एनी मैथमेटिकल प्रोसीजर जो किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, वी कॉल देम एज ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स। आप ऑपरेटर्स को ऐड कर सकते हो, आप ऑपरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो रूल के अकॉर्डिंग आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं, ए एंड बी ऑपरेटर। दोनों को ऐड कर लिया, किस फंक्शन पे लगा रहे हो? एफ पे। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ए ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एफ प्लस बी ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एफ। सिमिलरली आपके पास ए ऑपरेटर है माइनस बी ऑपरेटर है एक्टिंग ऑन फंक्शन एफ। इसका आंसर क्या आना चाहिए? ए ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एफ minus B operator acting on F. This is addition and subtraction of operators. Next आता है आपके पास multiplication of operators. Again, multiplication of two operators means application of two operators one after the other on a function. Let's suppose आपके पास दो operators हैं A and B और कौन से function पे act कर रहे हैं? Let's suppose operand is F. So इसके according पहले क्या होगा कि B जो है वो F पे act करेगा, राइट यानी कि ऑपरेटर जो B है इट विल एक्ट ऑन F। तो B जो है वो F को कन्वर्ट कर देगा इनटू F डैश, राइट। अब इसका जो आंसर आया F डैश, अब F डैश पे कौन लगाएगा अपना ऑपरेशन? A। तो A जब F डैश पे लगाएगा फिर से इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू अनदर फंक्शन F डबल डैश। सो बेसिकली A B ऑपरेटर एक्टिंग ऑन फंक्शन F इट इज इक्वल टू F डैश। तो सिमेट्रिकली ही चलना है। जो फंक्शन के साथ वाला ऑपरेटर है पहले वो ऑपरेटर इस पे ऑपरेट करेगा, जो आंसर आएगा फिर ए वाला ऑपरेटर उस पे ऑपरेट करेगा। लेट्स सपोज एग्जांपल लिया है यहाँ पे ए ऑपरेटर है, राइट, कितना लिया है? 2x स्क्वायर। बी ऑपरेटर है, कितना लिया है? d बाई डी एक्स, और फंक्शन यहाँ पे क्या लिया है? a x दी पावर 4। अब इस अकॉर्डिंग अगर हम लिखें ए बी एफ फंक्शन के अकॉर्डिंग तो ए की जगह पे हमने लिख लिया 2x स्क्वायर, बी की जगह पे लिख लिया डी बाई डी एक्स, और एफ की जगह पे हमने क्या लिख लिया? ए एक्स बाई 4। तो अब सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स जो है वो ए एक्स दी पावर 4 पे एक्ट करेगा। जो ए ऑपरेटर है वो बाहर ही पड़ा है, तो इस पे एक्ट करने पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस, तो इसका आंसर क्या आ गया? 4ax³। अब जो ए ऑपरेटर है अब ये इस पे एक्ट करेगा, मल्टीप्लाई होगा सिंपल, तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया? 8ax दी पावर 5। तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स को इस तरह ही हैंडल करना है हमने, राइट। थर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज कॉम्यूटेटिव ऑपरेटर्स। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर्स, इसमें क्या कहते हैं कि ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर एक्टिंग ऑन फंक्शन एफ इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर into function f. When two operators are applied in succession on a function, results depends upon the order in which operations are performed. अगर इसकी बात करें तो इस पे पहले कौन ऑपरेट कर रहा है? f पे b, फिर उसके बाद कौन ऑपरेट करेगा? a। इसकी बात करें इस पे पहले कौन ऑपरेट कर रहा है? a, उसके बाद कौन ऑपरेट करेगा इस पे? b। तो इन दोनों के रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट आएंगे, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ऑपरेटर ए क्या ले लिया? एक्स स्क्वायर, बी क्या ले लिया? डी बाई डी एक्स, और एफ क्या ले लिया? x4, राइट। अब पहले हमने ए बी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ए की जगह पे लिख लिया एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे लिख लिया डी बाई डी एक्स, और एफ की जगह पे क्या लिख लिया? एक्स की पावर 4। अब पहले ये इस पे ऑपरेट करेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया? 4, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस कर दो, 4x³। अब फिर ये इस पे एक्ट करेगा, आंसर आ गया आपके पास ये। अब इसमें रिवर्स है, पहले ए एक्ट कर रहे हैं एफ पे, तो इसकी पावर ऐड होगी 6 होगी, फिर बी ने इस पे ऑपरेट किया, राइट।